कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। We have already seen that Sri Lanka had retained democracy since its independence in 1948, but it forced a serious changes, not from the military or monarchy, but rather from ethnic conflicts, leading to the demand for cession by one of the region. ये हम देख चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद में से लेकर के श्रीलंका में डेमोक्रेसी कायम रही, और ये जो समय था ये बहुत ही मुश्किल से समय था। 1948 में जिस समय श्रीलंका इंडिपेंड हुआ, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चैलेंज का सामना करना पड़ा, और ये चैलेंज न तो यहाँ की सेना की थी और न ही यहाँ की राजतंत्र की थी। यह चैलेंज जो था जातीय संघर्ष को सामना करना था, और जिसकी मांग ये थी कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। After its independence, the political in Sri Lanka, it was then known as a cyclone, was the dominant force that represented the interest of the majority Singhania community. They were hosted to a large number of Tamil and who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. The migrant continued even after independence. The Singhania nationalists thought that Sri Lanka should not give concessions to the Tamil, and because Sri Lanka belonged to the Singhania people only. The neglect of Tamil concern led to military Tamil nationalists from 1983 onward. The military organization, the Liberation Tiger, or Tamil ethnic Lite has been fighted as armed and struggled with the army of Sri Lanka and demanded the Tamil Elam or a separate country for the Tamil of Sri Lanka. The Lite control the northwest part of the Sri Lanka. Now, कि इंडिपेंडेंस के बाद में श्रीलंका उन दिनों जिन्हें सिलोन कहा जाता था, तो श्रीलंका की पॉलिटिक्स बहुसंख्यक सिंहली कम्युनिटी के हितों की नुमाइंदगी वाला एक प्रेशराइज कंट्री था। ये लोग पहले इंडिया छोड़कर श्रीलंका में आ बसे, और एक बड़ी आबादी जो तमिल के खिलाफ थी, तमिलों का यहाँ आगे बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। इसलिए सिंहली नेशनलिस्ट का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिल के प्रति उपेक्षा से भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल नेशनलिस्ट की आवाज़ बुलंद हुई, और 1983 के बाद से उग्र तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल ईमेल लिटे श्रीलंका सेना के साथ में स्ट्रगल कर रहा था। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए अलग देश की डिमांड की। श्रीलंका के नॉर्थ में पूर्व हिस्से पर लिट्टे का कंट्रोल है। The Sri Lanka problem involved the people of the Indians and organ there the considered pressure from the Tamil people in India to effect that the Indian government should protect the interests of the Tamil in Sri Lanka. The government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lanka government on the Tamil question, but in 1987, government of India for the first time got directly involved in Sri Lanka and Tamil question. The Indian sing an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize relation between the Sri Lanka government and the Tamil. Eventually, the Indian army got into a fight with the Lite. The presence of Indian troops was also not liked much by the Sri Lanka. They saw this as an attempt by Indian to interference in the internal
affairs to Sri Lanka in 1989, the Indian peacekeeping force IPKF pulled out of Sri Lanka without attention its objective. श्रीलंका की समस्या इंडियंस लोगों से जुड़ी हुई है, तो इंडिया की तमिल जनता का भारतीय इंडियन गवर्नमेंट पर काफ़ी बड़े इफेक्ट पड़ा है या प्रेशर रहा है कि वह श्रीलंका के तमिलों के हित की रक्षा करे, और इंडिया गवर्नमेंट ने समय समय पर तमिल के इन क्वेश्चंस के ऊपर श्रीलंका गवर्नमेंट से बातचीत और कोशिश की कि किस प्रकार से 1987 में इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका के तमिल मसले का प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई, और इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका से एक समझौता या ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर किए। तो श्रीलंका गवर्नमेंट और तमिलों के बीच के रिश्ते सामान्य करने के लिए इंडियन फोर्स को भेजा गया, और आखिर में इंडियन फोर्स लिट्टे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट की गई, और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंका जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। अतः 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बगैर ही वापस बुला ली। The Sri Lanka crisis continued to be violent, and however the international actor and particularly the Scandinavian countries such as Norway and Ireland tried to bring the warring group back to negotiating. Finally, the formed conflict come to an end as the Leyte was in 2009. It supplied the conflict. Sri Lanka has registered and considerable economic growth and record high level of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in this region to liberalize the economy, and it has the highest per capita gross domestic production GDP for many years right through the civil war, and despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system. अब इन संघर्षों से प्रमुख रूप से जो प्रयास किए गए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष, श्रीलंका की संकट का हिंसक चरित्र था, और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आयरलैंड के स्कैंडिनेवियाई कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने बार होने और दोनों पक्षों के बीच से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। स्ट्रगल की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ की, डेवलपमेंट किया, अपना डेवलपमेंट का स्तर को हायर किया, पॉपुलेशन की वृद्धि पर भी सफलतापूर्वक कंट्रोल किया, और डेवलपमेंट कंट्रीज में श्रीलंका सबसे नंबर 1 पे आता है। तो साउथ एशिया के देशों के साथ पहले श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को लिबरेट किया, और होम वॉर से गुजरने के बावजूद कई सालों तक इस देश के प्रति व्यक्ति GDP सकल घरेलू उत्पाद जो है एशिया में सबसे अधिक है, और इंटरनल स्ट्रगल को लेकर के भी श्रीलंका ने डेमोक्रेसी व्यवस्था को अपने यहाँ पर स्टेबलाइज रखा।